Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So in this video we are going to create an end-to-end system skin cancer detection using deep learning CNN model. तो ये क्रास का प्लेलिस्ट है जिसमें ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है CNN से रिलेटेड, जिसमें हम बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे काम करेंगे यूजिंग मेडिकल स्किन इमेजेस. तो जस्ट लेट मी शो यू द आउटपुट. आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना कोई स्किन वाला इमेज अपलोड करना होगा. तो जैसे आप अपलोड करते हो तो ये सिस्टम आपको इमेज डिस्प्ले करके देगा और यहाँ पे बताएगा कि इस इमेज में कैंसर है या नहीं, लाइक मैलिग्नेंट और बेनाइन. अगर यहाँ पे बेनाइन है तो मतलब इस इमेज में कैंसर नहीं है, स्किन कैंसर नहीं है. बट इफ इट इज saying malignant, it's mean that in this image we have cancer detected. Let me try another image. यहाँ पे एक और इमेज है हमारे पास which is benign. It's mean that we don't have any cancer on the skin after detecting. And I have added some custom description about the app. So yeah, this is the app which is going to detect skin cancer with an image using deep learning, especially computer vision. So आज हम CNN को इमेज क्लासिफिकेशन के लिए यूज करने वाले हैं, विच इज बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. ठीक है. प्रोजेक्ट रोड मैप. प्रोजेक्ट रोड मैप काफी सिंपल है. अगर आपने डीप लर्निंग के रास 2025 प्लेलिस्ट एक्सेस किया है देन आप फेमिलियर होगे कि हमने पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स में रोड मैप्स देखे हैं. सो फर्स्ट वी विल डू टू लोड अ डेटा सेट एंड डू सम प्री प्रोसेसिंग. But this time pre-processing will be related to image pre-processing. ठीक है. And the data set जो हम यूज करने वाले हैं वो है medical skins images. Then we will do some EDA, exploratory data analysis. Then we will build CNN for image classification, especially binary class classification using Keras framework. Then we will train this CNN model and we will also evaluate using confusion matrix, classification report and some plots. Then we will create a prediction system by passing a new image. Then we will display and we will also see the class that belong that image. Then we will create a Streamlit UI app and we will integrate that model. तो ये पूरा का पूरा फ्लो है इस प्रोजेक्ट का. इस प्रोजेक्ट के लिए मैं यूज करने वाला हूँ Kaggle notebook. But you can use Colab notebook or your own Jupyter notebook. The reason behind Kaggle notebook so that I could not download this data set. तो यह है डेटा सेट. आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. In which we have two classes, benign and malignant. अगर मैं benign के अंदर जाऊँ इसमें हमारे पास बहुत सारे images हैं. So first option, either you can download this data set, then you can upload on your Google Drive, and then you can open Colab notebook with free GPU and you can run the code. I'll share all the code that we are using in this data set. The second option, you can use your own Jupyter notebook if you have GPU, but I recommend you to use Google Colab notebook. You can just click on this and new notebook because you can easily add the data set. If you click on this add input, you can search here the data set. Just copy this title, Control C and Control V. जैसे आप एंटर करते हो ये डेटा सेट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा. मेरे पास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ये पहले ऐड किया है. ये आप देख सकते हो. जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन एंड आपका जो डेटा सेट होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा. यू हैव टेस्ट सेट इन विच वी हैव बेनाइन एंड मैलिग्नेंट एंड यू हैव ट्रेंड सेट इन विच वी हैव बेनाइन एंड मैलिग्नेंट. सो ये है डेटा सेट लोड करने का मेथड. नाउ लेट्स क्विकली इंपोर्ट some classes and function using Keras, and also we have to load the data set. So first I need to okay if you are using this notebook Kaggle, you can click on setting, go to your accelerator and select GPU P100. ठीक है. You can also go with none, I mean CPU. So मैं यहाँ पे import करता हूँ OS module जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो. देन मैं numpy इंपोर्ट करता हूँ. लेट मी जूम इन. उसके बाद मैं TensorFlow को एज TF इंपोर्ट करता हूँ एंड उसके बाद मैं
टेंसर फ्लो के अंदर जाके, केरास के अंदर जाके बेसिकली प्री प्रोसेसिंग से के अंदर जाके इमेजेस से इंपोर्ट करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, इमेज डेटा generator. This is the class with which you can easily do image pre-processing in few lines of code. This is very important. We'll say a bit later. इसके बाद I'll import from TensorFlow के Keras के मॉडल से sequential class. ये आप सबको पता है. With the help of this sequential class, we can create any neural network architecture stack wise. ठीक है? Or now this line is important because with the help of this line we are going to import some layers and classes for creating CNN model. So वो आपको layer से import करना होगा. The first part is convolutional 2D. मैंने आपको बताया था CNN के केस में आपके पास 3 layers हैं, convolution 1D, convolution 2D, convolution 3D. Convolution 1D used for textual data, text classification, audio classification, sequential data. Convolution 2D is specially used for images, non-sequential data. And convolution 3D we will see in future videos, that is used for videos related data. ठीक है? और हर convolution के साथ एक max pooling layer आता है. तो अगर 2D है तो max pooling must be 2D for images. And once you get max pooling, then you have to flatten that images into single dimension array ताकि हम जो CNN का सेकंड पार्ट है उसको दिखा सके अपना डेटा. ये मैंने आपको CNN के वीडियो में बताया था. So flatten के बाद for fully connected layer we need DAMS layer and यहाँ पे मैं drop out layer ऐड करता हूँ जो आप randomly न्यूरॉन को ड्रॉप करते हो so that you save your model from overfitting. ठीक है? देन मैं यहाँ पे ऐड करूँगा बैच नॉर्मलाइजेशन जिसकी मदद से आप अपने इमेजेस की जो पिक्सल वैल्यूज है उनको नॉर्मलाइज कर सकते हो. एंड द फाइनल थिंग दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, दैट इज ग्लोबल एवरेज पुलिंग 2D. सो ग्लोबल एवरेज पुलिंग 2D. So for now just import it. We'll see their implementation later. And also we need some evaluation classes from TensorFlow के Keras के callback से we need to import few things like early stopping कि अगर मॉडल और फिटिंग की तरफ जाए तो यानी इम्प्रूव ना करे खास पॉइंट पे तो आप इसको स्टॉप कर सकते हो with the help of early stopping. And you can also improve or stop learning rate with the help of reduce learning rate on some kind of plateau, or you can say we will see that plateau. I think the spelling is correct. So let me paste quickly this. So सबसे पहले हमने OS import किया, उसके बाद NumPy, then TensorFlow, then Keras के प्री प्रोसेसिंग के इमेज से इमेज डेटा जनरेटर जिसकी मदद से आप इमेज को नॉर्मलाइज एंड डेटा को ऑगमेंट कर सकते हो. देन वी हैव इंपॉर्टेंट सिक्वेंशियल जिसकी मदद से आप न्यूरल नेटवर्क की आर्किटेक्चर बनाते हो. देन हमें CNN के कुछ लेयर्स चाहिए थे जैसे कि कानवा 2D, मैक्स पुलिंग 2D, फ्लैटन, डांस, ड्रॉप आउट, पैच नॉर्मलाइजेशन एंड ग्लोबल एवरेज पुलिंग 2D. Now these two things just we use when we compile the model. After creating the architecture of the model, we have to compile that model. And while compiling the model, we are telling that if the model is going to overfitting, then stop it on some epochs. And if the learning rate is not updating after some epochs, then you can also to stop that learning rate. Okay. उसके बाद मॉडल को इवेलुएट करने के लिए we have important from scikit-learn matrices classification report and confusion matrix. And for visualization, we have important these two libraries, Seaborn and Matplotlib. So let me run it. ये यहाँ पे रनिंग में है. अब यहाँ पे सबसे पहले मैं डेटा सेट को लोड करता हूँ. तो ये मेरे पास एक बेस डायरेक्टरी है. अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं यहाँ पे आ जाऊँ, दिस इज माई बेस डायरेक्टरी. जस्ट हावर एंड कॉपी एंड पेस्ट इट राइट हियर. ठीक है.
और इस बेस डायरेक्टरी के अंदर बेसिकली मेरे पास दो डायरेक्टरी है, ट्रेन एंड टेस्ट। तो मैंने बेसिकली ये निकालने हैं, तो वो मुझे OS के pod.join के अंदर जाके यानी इस डायरेक्टरी में उसका ट्रेन निकाला और इसको मैंने कहा ट्रेन डायरेक्टरी, और देन मैंने टेस्ट निकाला। अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को प्री प्रोसेस करता हूँ डायरेक्टली। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जो आगे मुझे काम आएगा, जैसे कि इमेज का साइज आप हमेशा पहले से डिफाइन कर लेना। तो इमेज साइज में यहाँ पे रखता हूँ 224 विल बी द विड्थ एंड 224 विल बी द हाइट, ताकि तमाम इमेज का हमारे पास विड्थ एंड हाइट सेम रहे। एंड दिस शुड बी कैपिटल लाइक दिस। और उसके बाद आपको पता है कि डीप लर्निंग के अंदर जब आप इमेजेस या वीडियोस के साथ डील करते हो तो आपका मॉडल बहुत टाइम लेता है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने इमेजेस को बैचेस में रीड कर लें, प्री प्रोसेस कर लें। तो आप 16, 32, 64 बैचेस इस तरह रख सकते हो, जिससे आपकी मॉडल की जस्ट स्पीड बढ़ेगी और कुछ नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ ट्रेन डेटा जेन के नाम से, एंड नाउ लेट मी कॉल image, what was the class basically, just let me quickly copy, Control C and Control V। so image data generator, अब इसके अंदर आप कुछ पैरामीटर पास करते हो लाइक रिस्केल, कि जो इमेज होगा उसको मैं 0 और 1 की फॉर्म में ले आता हूँ। तो वो आप जस्ट 1 पॉइंट को डिवाइड कर सकते हो 255 के साथ। अब इससे क्या होगा कि आपका इमेज की जो पिक्सल वैल्यूज होंगे वो 0 और 1 के फॉर्म में आएगी, जिससे मॉडल तमाम इमेजेस को इक्वल इंपॉर्टेंस देगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो हर इमेज है उससे मैं डेटा जनरेट करूं डायनामिकली। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स है, जैसे कि एक इमेज को आप रोटेट कर सकते हो 20% उसके विड्थ में, ताकि आप एक नया इमेज बना सकें। एंड फिर आप एक और है जैसे कि विड्थ शिफ्ट रेंज, यहाँ पे कुछ बिल्ट इन वैल्यू है जो आपको रिसर्च से मिलेंगे, लाइक मैंने अगेन 20% रखा। और इसी तरह मैं हाइट वाइज इमेज को शिफ्ट करना चाहता हूँ अगेन विथ 20% वैल्यू। एंड एक और पैरामीटर है शेयर रेंज, जिसे आप इमेज को शेयर कर सकते हूँ, ये मैं 20% रखता हूँ। एंड इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स या वैल्यूज है आप उनको जूम कर सकते हो, तो आप वो रेंज रख सकते हो अगेन सेम। एंड इमेज को आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली फ्लिप कर सकते हो। सो मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप यहाँ पे कॉल करता हूँ, इसको मैं ट्रू रखता हूँ। बस ये काम हमने करना था। अब हमारे पास ट्रेंड डेटा जेन बन गया, जिसको हम अपना ट्रेंड डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जो टेस्ट है उसके केस में मैं यहाँ पे जस्ट स्केलिंग ऐड करूँगा, क्योंकि उसके लिए मैं जस्ट नॉर्मलाइजेशन करना चाहूँगा। बाकी जो जनरेशन है वो जस्ट मैं ट्रेनिंग के लिए करूँगा। सो स्केल विल बी लाइक दिस, ओनली वी नीड दिस थिंग फॉर टेस्ट सेट। नाउ लेट्स अप्लाई दिस ऑन आवर इमेजेस। सो सबसे पहले मैं इसको अप्लाई करता हूँ ट्रेंड डेटा सेट के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाए और मैं इसको कहता हूँ ट्रेंड जनरेटर, और उसके बाद जो अपना ट्रेंड डेटा जेन है उसके अंदर जाके एक फंक्शन होता है फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी। अब बेसिकली मैं बताने जा रहा हूँ, एक पैरामीटर होता है इसके अंदर डायरेक्टरी, आप उसको अपना ट्रेंड डायरेक्टरी दे दो जिसके अंदर आपके पास इमेजेस पड़े हैं, और हर इमेज का टारगेट साइज दे दो। अगेन एक पैरामीटर जो बिल्ट इन है, और वो इमेज साइज मेरे पास ऑलरेडी है लाइक दिस। एंड बैच साइज आप बता दूं, और बैच साइज मेरे पास अगेन ऑलरेडी है। तो ये रहा अपना बैच साइज। एंड फाइनली क्लास मोड बता दूं, मल्टी क्लास है, बाइनरी क्लास है, सो वो है हमारा बाइनरी क्लास classification problem. That's it. Now the last thing, we have to do the same thing for test data.
लेट मी क्विकली रिवाइज। ये है हमारे डेटा सेट का बेस डायरेक्टरी, उसके बाद ट्रेंड डायरेक्टरी एंड टेस्ट डायरेक्टरी मैंने निकाला। मैं चाहता हूं कि मेरे ट्रेंड एंड टेस्ट के अंदर जितने भी इमेजेस हैं हर इमेज की विड्थ एंड हाइट 224 हो और मैं 32 बैच में इमेजेस को प्री प्रोसेस एंड रीड करना चाहता हूं। अब इमेज प्री प्रोसेसिंग के अंदर केरास आपको ये क्लास प्रोवाइड करता है जिसको आप जो आपको दो चीजें देता है, इमेज को प्री प्रोसेस करना और एग्जिस्टिंग इमेजेस से डाटा को जनरेट करना। तो अब इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस है लेकिन जो आप मोस्टली यूज करोगे वो ये क्लासेस हैं। सबसे पहले हर इमेज को मैंने स्केल किया। मैंने आपको बताया था कि इमेज के पीछे पिक्सल वैल्यूज होते हैं 0 से लेकर 255 तक। तो उससे हो सकता है कि कुछ पिक्सल वैल्यूज कम हो कुछ ज़्यादा हो, तो हम चाहते हैं कि उनको 0 और 1 के रेंज में ले आए जिससे मॉडल तमाम इमेजेस को इक्वल इंपॉर्टेंस दे। और ये जो हमने यूज़ किए हैं लाइक इमेज को रोटेट करना, विड्थ एंड हाइट वाइज शिफ्ट करना, शेयर रेंज, जूम इन, इमेज को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना, ये जस्ट हम अपने एग्जिस्टिंग डेटा से डेटा ऑगमेंटेशन करते हैं। डेटा ऑगमेंटेशन की आप एग्जिस्टिंग इमेजेस से डेटा को जनरेट करते हो जिससे ये फायदा है कि फिर आपका जो मॉडल होता है वो और फिटिंग से बच जाता है, फिर उसकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी होती है। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया ट्रेनिंग के लिए और ये हमने टेस्टिंग के लिए बनाया। टेस्ट के केस में आप जस्ट स्केलिंग करते हो, ऑगमेंटेशन नहीं करते। फिर हमने ट्रेंड जनरेटर पे ये अप्लाई किया। अब जितने भी इमेजेस होंगे वो इसके अंदर स्टोर हो गए, लेकिन अब पिक्सल वैल्यूज यानी जो भी प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स है वो सारे के सारे इनके अंदर होंगे। एंड देन हमने टेस्ट डायरेक्टरी पे किया और उसके बाद जो ट्रेंड जनरेटर था उसके क्लास इंडिसेस मैंने जस्ट निकाले दिखाने के लिए। ये मैंने रन किया तो ये हल्का सा टाइम लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रनिंग में है। सो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेनिंग इमेजेस है वो ऑलमोस्ट 12,000 हैं, where we have two classes, and for test data we have only 2,000 images with 2 classes, which is good. This data is good enough. And we have 2 classes basically. Benign is 0 and malignant is 1. Before training the model we can also do this part. Basically ये part optional है, this is not important for this project, but yes you can do for learning purposes. Basically I want to plot 6 images, basically 9 images in 3 rows. This is first row, second row and third row, and in each row I want 3 images, basically 3 columns. So we have 3 rows and 3 columns. For that we need to create a figure using matplotlib library. So मैं एक फंक्शन बनाता हूँ by the name of plot images जिसके पास मेरा जो जनरेटर है वो आ रहा है, I mean my data set. अब इससे पहले मैं इमेज और उसके लेबल्स निकालता हूँ तो I can use Python next method while passing the generator. ठीक है, it will get a batch. उसके बाद मैं एक फिगर बनाता हूँ, I mean this entire figure. This is an entire figure in which we will have rows and columns. For that you can use matplotlib library figure class, and there you can set width and height in inches. So 10 inches width and 10 inches height. और उसके बाद I'll run a loop because I have 9 images. So you can also set 10 or 15 depending on you, but for now I want 9. So I want to run this loop 9 times. And each time I have to create subplots for columns. Okay, so loop के अंदर जाके I'll use matplotlib.subplot, and within subplot I'll say 3 rows 3 columns, और हर कॉलम के अंदर इमेज आप ऐड करना मेरे लूप के बेस पे। ठीक है, इनिशियली 0 होगा तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि लूप 0 से स्टार्ट होता है। एंड देन लेट्स प्लॉट द इमेज. सो फॉर दैट यू कैन यूज IAMShow मेथड, and then you can pass your images on this index or location. You can say, you can also add title if you want, like I want for each images a label. So label could be if labels के ith पे equal to 1, it's mean it's cancerous. So I can say cancer, malignant. अदरवाइज आप इमेज के लिए टाइटल दे दो
This is Python one line code, otherwise it will be non-cancerous, mean benign cancer. Okay, and final thing, let's also off accesses, so you can off it. That's the code, and outside the loop just show the plot. And now let's call this function. So plot images, and let me pass my trend data, or you can also pass टेस्ट डाटा. सो ट्रेंड जनरेटर. ठीक है, सो ये मैंने रन किया, अब ये रनिंग में है. सो यू कैन सी वी आर प्लॉटिंग the images. Now you can see, you can explore how cancerous image looks like and how non-cancerous images looks like. ठीक है, now let's build our CNN architecture for binary images classification problem. Now there are a lot of methods to create neural network. एक आसान तरीका जो मैं नॉर्मली यूज करता हूँ वो ये है कि जो ऊपर हमने इंपोर्ट्स किए थे सेपरेटली, कन्वोल्यूशन, 2D, बैच नॉर्मलाइजेशन, ऑल दोस थिंग्स, फॉर दैट यू कैन ओनली यूज tensorflow.keras से इंपोर्ट कर दे लेयर्स एंड मॉडल्स. विद द हेल्प ऑफ दिस टू क्लासेस यू कैन क्रिएट योर CNN मॉडल. सो मैं अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ. अब मॉडल्स के अंदर जाके आप डायरेक्टली सीक्वेंशियल को कॉल कर सकते हो, और यू कैन डायरेक्टली से सीक्वेंशियल. ठीक है, बट यू कैन आल्सो गो विद मॉडल्स डॉट सीक्वेंशियल. प्रीवियसली आई थिंक हमने ये नहीं किया था, सिंपल डायरेक्ट सीक्वेंशियल में गए थे. सो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आप मॉडल्स के साथ भी जा सकते हो सीक्वेंशियल, एंड इट शुड बी मॉडल्स. यही केरास की ब्यूटी है कि वो हर तरह से इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड करता है. अब लिस्ट के अंदर लेट्स क्रिएट आवर न्यूरल नेटवर्क. अब न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपके पास इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स एंड आउटपुट लेयर. बट CNN के केस में प्रोसेस थोड़ा सा अलग है. देयर आर 2 पार्ट्स इन CNN, फीचर एक्सट्रैक्टर एंड क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, फुली कनेक्टेड लेयर्स. सो लेट्स वर्क ऑन द फीचर एक्सट्रैक्टर पार्ट. सो first convolution layer you can say, or block, that would be good. अब इसके अंदर मैं जाता हूँ अपने लेयर्स के अंदर, और सबसे पहले कॉल करता हूँ canva 2D, और मैं इसको पास करता हूँ 32 पॉइंट्स, या और यू कैन से यूनिट्स. और फिर आप कर्नल साइज डिफाइन करते हो इमेजेस के ऊपर. मैंने आपको CNN के केस में पढ़ाया था कि आप अपने इमेज के ऊपर एक छोटा सा एरे रखते हो, विच इज बेसिकली अ कर्नल, जो आपके इमेज के ऊपर मूव करता है स्ट्राइड वाइज, और वहां से जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करता है. सो वो मैं रखता हूँ 3x3, यानी 3x3 मैट्रिक्स का कर्नल मैंने बनाया. ठीक है, और मैं यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन रखूंगा रैलियो. CNN के केस में आप हमेशा फीचर एक्सट्रैक्टर में रैलियो को ही यूज करना, चाहे वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो या बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर इमेजेस के साथ डील करते हो. ठीक है, एंड वी हैव टू मेंशन इनपुट शेप फॉर ईच इमेज. सो हर इमेज का जो इनपुट शेप है वो 224x224 with the 3 channel, because we are dealing with RGB images. So this is first convolutional layer. Now after each convolutional layer in CNN you add another layer which is called pooling layers, either max pooling layers or average pooling layers, जो आपके इस इमेज का जो भी एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन होगा उसको फर्दर रिड्यूस करता है, यानी उस इमेज के डायमेंशन को फर्दर रिड्यूस करता है बाय टेकिंग मैक्स वैल्यू, जो मैंने आपको CNN में आखिर में पढ़ाया था, जो 2D पे हम पहुंचे थे. सो उसके लिए आप यूज करते हो लेयर्स मैक्स पोलिंग 2D, और आई वांट 2D मैट्रिक्स, सो आई कैन पास 2x2. जो मैक्स पोलिंग होगा वो 2D यहाँ पे होगा. नाउ लेट्स ऐड सेकेंड कन्वोल्यूशनल लेयर. सो कंट्रोल C. बाय द वे यहाँ पे काम मत डालना, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ सेकंड कन्वोल्यूशनल, बट इस टाइम में अपने यूनिट्स को 64 रखता हूँ, यानी इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ. सेकंड में आपको इमेज की शेप देने की ज़रूरत नहीं है, बट आप एक्टिवेशन दे सकते हो. बाकी मैक्स पुलिंग लेयर सेम रहेगा. लेट मी आल्सो ऐड अनदर कन्वोल्यूशन. यू कैन मेक इट मोर एंड मोर डीप,
बट अगर आप 3 कन्वोल्यूशन के साथ जाएं, basically this is the first part. In CNN, if I add command in CNN, we have 2 parts: feature extractor and classification या NNN या न्यूरल नेटवर्क जिसको आप कहते हो, या फुली कनेक्टेड layers भी आप कह सकते हो, ठीक है। सो दिस मच पार्ट वी हैव डन ओनली फॉर फीचर एक्सट्रैक्टर। सो यहाँ पे मैं जस्ट चेंज करूंगा इसको, अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दो 128 यूनिट्स, ठीक है। नाउ लेट्स ऐड द सेकंड पार्ट। सो द सेकंड पार्ट इज क्लासिफिकेशन। नाउ बिफोर गोइंग टू क्लासिफिकेशन यू हैव टू फ्लैटन द फाइनल इमेज। मतलब जो 2D में आपका मैक्स पुलिंग आया था लाइक दिस, अगर वैल्यूज आए थे, यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू सिंगल डी 20 20 30 30 so that we can feed it to classification. सो उसके लिए आप सिंपली करते क्या हो कि लेयर्स के अंदर जाके फ्लैटन करता हूँ। मैंने बड़ी डिटेल से CNN में पढ़ाया था, अगर आपने देखा है। अब मैं ऐड करता हूँ फुली कनेक्टेड वाला पार्ट। सो उसके लिए आप लेयर्स के अंदर जाके डेंस यूज़ करते हो। अब यहाँ पे आप न्यूरॉन 512 रख सकते हो, एक्टिवेशन आप सैम रख सकते हो, रेलियो। और इस लेयर के बाद मैं ऐड करूँगा ड्रॉप आउट लेयर, कि अगर मॉडल और फिटिंग की तरफ जाए तो आप 50% न्यूरॉन्स रैंडमली ड्रॉप करें ट्रेनिंग से, ताकि मॉडल और फिटिंग से स्टॉप हो जाए। एंड लेट्स ऐड आउटपुट लेयर। You can also make it more deeply. I mean, you can also make this part more deeply by adding more layers. But for now, it's enough. So यहाँ पे मैं 1 दूंगा क्योंकि मेरे पास binary class classification है. You can also give 2 neurons, but we can go with 1. And this part is important. Activation must be sigmoid in binary class classification problem or softmax. So अगर आपने 2 या 3 या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो softmax यूज कर लेना। आउटपुट लेयर में अगर बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो सिग्मॉइड यूज कर लेना, ठीक है। ये है अपना पूरा का पूरा आर्किटेक्चर CNN का। दिस इज आवर फीचर एक्सट्रैक्टर वाला पार्ट एंड दिस इज क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। नाउ वी हैव दिस मॉडल, सो वी हैव टू कंपाइल इट। So compilation is very simple. In the same playlist in previous 2 videos I already shown you how to compile a model. Basically you call the model and then call compile, and within compile you pass 3 things: optimizer, loss and matrices. Optimizer almost आप एडम यूज करते हो, बट लॉस आप चेंज करते हो प्रॉब्लम के हिसाब से। अगर बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन है देन यू हैव टू यूज बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में आप एक और यूज करते हैं जो हम शायद फ्यूचर के वीडियोस में देखेंगे। मैट्रिसेस हमेशा एक्यूरेसी आप रखते हो, देन आप मॉडल को कंपाइल करते हो। सो लेट्स सी इफ आई रन, ये है हमारा मॉडल। यू कैन एक्सप्लोर ऑल द लेयर्स, बट टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स हमारे इस मॉडल में बहुत ज़्यादा हैं, यानी हमारे मॉडल की जो आर्किटेक्चर है काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स है बेस्ड ऑन दिस टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। नाउ लेट्स ट्रेन एंड इवेलुएट द मॉडल। अब ये ट्रेनिंग का पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है फॉर बिगिनर्स। आप क्या करते हो कि मॉडल के अंदर जाके फिट को कॉल करते हो और इसके अंदर आप अपना ट्रेनिंग डाटा देते हो जो कि ट्रेंड जनरेटर है, और स्टेप्स पर इपॉक्स आप कितने इपॉक्स के बाद अपने मॉडल को इवेल्युएट करना चाहते हो, तो वो आप हमेशा जो आपका ट्रेंड डाटा होता है उसके तमाम एग्जाम्पल्स उठाए और उसको आप डिवाइड कर दे बैच साइज के साथ। बैच साइज के साथ अब इसका जो भी वैल्यू होगा वो फिर बेस्ट रहता है आपके हर इपॉक के बाद मॉडल की इवेल्युएशन के लिए। और आप कितनी बार ये मॉडल ट्रेन करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि 30 टाइम्स। सो उसके बाद हमने वैलिडेशन डेटा दिया एंड देन वैलिडेशन स्टेप्स भी उसी तरह हमने दिए। नाउ दिस थिंग कॉलबैक्स इन विच वी हैव अर्ली स्टॉपिंग एंड लर्निंग शेड्यूलर, ये मैंने यहाँ पे ऊपर डिफाइन करने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
जब भी आप चाहते हो कि आपका मॉडल और फिटिंग से बच जाए, यानी अगर वो जाते जाते, यानी टोटल आपके मैंने कितने इपॉक्स यहाँ पे बताए हैं 30 इपॉक्स, तो अगर 5 इपॉक्स के बाद आपका मॉडल इंप्रूव ना करे तो आप 30 इपॉक्स क्यों अपना टाइम यहाँ पे ज़ाया करना चाहते हो। तो आप फौरन कह दें कि इसके बाद हमारा मॉडल इंप्रूव कर ही नहीं रहा, तो आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दें। इससे दो फायदे हैं कि एक आपका टाइम सेव हो जाएगा, सेकेंडली आपका मॉडल और फिटिंग से बच जाएगा, ठीक है। बट स्टिल इट डिपेंड्स, बट यू हैव टू पास अर्ली स्टॉपिंग। सो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ अर्ली स्टॉपिंग, और उसके लिए अब हमने कुछ वैल्यूज देने हैं अर्ली स्टॉपिंग के अंदर। वी ऑलरेडी हैव scikit-learn क्लास अर्ली स्टॉपिंग, और इसके अंदर आप मॉनिटर देते हो वेलास, अब ये क्यों देते हो मैं आपको बताऊंगा, एंड पेशेंस देते हो 5, ये आप क्यों देते हो ये भी मैं बताऊंगा। रिस्टोर बेस्ट वेट्स को आप ट्रू रखते हो, क्यों मैं आपको बताता हूँ, एंड वेरबोस विल बी 1। सो मतलब कि जब मेरा ये मॉडल ट्रेनिंग पे जाए तो मैं चाहता हूँ कि वैलिडेशन लॉस अगर 5 इपॉक्स के बाद इंप्रूव ना करे तो अर्ली स्टॉपिंग के पास ये एबिलिटी है कि वो इस मॉडल को स्टॉप करे। वैलिडेशन लॉस अगर मुसलसल कंसेक्यूटिवली 5 इपॉक्स के बाद इंप्रूव ना करे तो आप इसको स्टॉप करें, और फिर इस मॉडल के जो भी बेस्ट वेट्स एंड पैरामीटर्स हैं उनको आप लोड कर लें। एंड वेरबोस इसलिए कि जो ये प्रोग्रेस बार होगा वो शो कर लें। और अब ये सेम काम अब डीप लर्निंग के अंदर आपके पास मोस्टली कि आप मॉडल को स्टॉप कर लेना और उस मॉडल का जो लर्निंग रेट है वो बेस्ट सेलेक्ट कर लेना। तो अगर आप चाहते हो कि आपका लर्निंग रेट भी बेस्ट रहे, अगर कुछ इपॉक्स के बाद इंप्रूव ना करे, यानी आप बेस्ट पे स्टॉप होना चाहते हो, देन यू हैव टू आल्सो सेट लर्निंग रेट। सो लर्निंग शेड्यूलर, उसके लिए आप यूज करते हो रिड्यूस लर्निंग ऑन प्लेट्यू, और उसके अंदर फिर अगेन यू हैव टू पास द सेम थिंग आफ्टर वैलिडेशन लॉस, एग्जैक्टली आफ्टर 3 पेशेंट्स, आई मीन 3 इपॉक्स। अगर आपका लर्निंग रेट अपडेट ना रहा तो इसका मतलब है कि इससे बेस्ट लर्निंग रेट आपको नहीं मिल सकता, तो फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं, जो भी लर्निंग रेट आपको मिला है उसी पे रुक जाए। और यहाँ पे एक और पैरामीटर है फैक्टर, आप 0.30 यानी 70 कुछ इस तरह, 100 में अगर 70 से 30 को निकाल के तो 70 रह जाता है। और एक और पैरामीटर होता है मीन लर्निंग रेट। अब उसके लिए एक वैल्यू है जिसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं, बट ये बेसिकली आपको जो आपका लर्निंग रेट है उसको 3 इपॉक्स के बाद रिड्यूस करता है अगर इसको इम्प्रूवमेंट ना मिले। वो एक रिसर्च बेस्ड वैल्यू है, बेसिकली ये कुछ हो जाता है 10 रेस्ट टू द पावर -7, कुछ इस तरह बनता है, आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ा था। और अगेन वेरबोस। सो या दिस इज द कोड, मैं यहाँ पे जल्दी से पेस्ट करता हूँ। ये रहा अपना अर्ली स्टॉपिंग, जस्ट इट यूज टू स्टॉप द मॉडल if the model is not improving after 5 epochs, I mean the validation loss. And we are also stopping stopping the learning rate if it is not improving after 3 epochs, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है। So let me run it and let's see. So अपना जो ट्रेनिंग है यहाँ पे स्टार्ट है, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जब ये कंप्लीट हो जाए देन विल कंटिन्यू। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर 5 इपॉक्स हमारा मॉडल स्टॉप हो गया, जहाँ पे ट्रेनिंग एक्यूरेसी है 85 एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी है 88, जो कि गुड इनफ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस मॉडल को सेव भी कर सकते हो, तो आप लाइक CNN कैंसर model.h5 के नाम से सेव कर सकते हो। And if you want your model plot, you can use matplotlib and seaborn with this code, ठीक है। सो अब बेसिकली हमारा जो मॉडल का रिजल्ट है वो हिस्ट्री में स्टोर है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप मैटप्लॉटलिब के प्लॉट के अंदर जाके हिस्ट्री में एक्यूरेसी
एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी निकाल के देख सकते हो। सो जैसे मैं रन करता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इफ आई शो यू द वर्किंग डायरेक्टरी, तो आवर मॉडल मस्ट बी राइट हियर। अब यहाँ पे 3 डॉट पे जाएं एंड डाउनलोड पे क्लिक करें ताकि ये आपके पीसी पे डाउनलोड हो जाए। सो ये आप अभी के लिए जस्ट क्लिक कर दें क्योंकि ये सम टाइम लेता है। Now let's evaluate the model like classification report and confusion matrix. So सबसे पहले हमने मॉडल से प्रेडिक्शन करनी होगी। So model dot predict on test generator, and यहाँ पे भी आपको स्टेप्स बताने होंगे, तो वो मैं टेस्ट जनरेटर का सैंपल्स निकाल के वही सेम तरीके से बैच साइज विद वर्बोस 1, और इसको मैं कहता हूँ लाइक टेस्ट प्रेडिक्शन। ठीक है, अब इन टेस्ट प्रेडिक्शन के पास प्रोबेबिलिटीज होंगे, तो वी नीड क्लासेस, सो प्रेड लेबल्स लाइक 0 and 1। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, टेस्ट स्प्रेड अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा, और उसका जो टाइप होगा वो इंटीजर 32 का होगा। इफ आई जस्ट शो टेस्ट स्प्रेड लेबल्स like this, if I run it, so okay, it should be in string 32. So अब आप देख सकते हो हमारे पास 0 and 1 है, यानी मैलिग्नेंट एंड बेनाइन। अब अगर आप चाहो तो इस 0 and 1 के क्लासेस नाम भी निकाल सकते हो, यानी मैलिग्नेंट एंड बेनाइन। तो मैं कहता हूँ टेस्ट ट्रू लेबल्स। अच्छा, अभी के लिए मैं जो ट्रू लेबल्स है वो निकालता हूँ क्योंकि मैंने आगे कंपैरिजन करनी है। तो टेस्ट जनरेटर के अंदर जाके क्लासेस को के अंदर जाके मैं कहता हूँ कि इससे आगे अपने जो टेस्ट स्प्रेड लेबल्स है, बेसिकली अभी के लिए मैं जस्ट उनकी लेबल्स निकाल रहा हूँ। तो टेस्ट स्प्रेड लेबल्स, अब अगर मैं टेस्ट ट्रू लेबल्स दिखाऊं, सो अब हमारे पास एक लिस्ट के अंदर 0 and 1 आ गए हैं। ठीक है, so now we can do comparison using confusion matrix and classification report. So मैं प्रिंट कर सकता हूँ, या जस्ट अगर मैं चाहूँ तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमने इंपोर्ट किया था, उसको मैं अपना टेस्ट ट्रू लेबल्स एंड टेस्ट, बेसिकली आप पहले भी कर सकते थे, अगर आप चाहते तो आप ट्रेंड स्प्लिट में ये कर सकते थे। तो अब मैं आपको क्लासिफिकेशन रिपोर्ट दिखा देता हूँ। तो आई डोंट नो व्हाई इसकी फॉर्मेट कुछ खास अच्छी नहीं है, सो मैं क्यों ना प्रिंट में इसको दिखाऊं। सब आप देख सकते हो कि इस मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो 50 है, बेसिकली टेस्ट डाटा पे। हालांकि वहाँ पे 84 था, और क्लास 0 and 1 के लिए आप प्रेसिजन रिकॉल F1 स्कोर की वैल्यूज दे सकते हो। सो मॉडल की रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं है टेस्ट डाटा पे, बट यू कैन गो विद इट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेम है, एग्जैक्टली सेम थिंग्स अंटिल दिस पार्ट। उसके बाद मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स और उस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को यहाँ पे प्लॉट किया। सो जस्ट लेट मी शो यू, आई एम रिपीटिंग दिस कोड इन प्रीवियस फ्यू प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि डायगोनल के ऊपर डायगोनल के नीचे अगर आपके वैल्यू ज़्यादा है तो आपके मॉडल की मिस क्लासिफिकेशन ज़्यादा है। तो मॉडल की रिजल्ट कुछ खास अच्छी नहीं है, but yes you can go with it for learning purposes। ठीक है,
बट यस अगर हम ट्रांसफर लर्निंग यूज कर लेते तो ये और भी अच्छा मॉडल होता, ठीक है। नाउ लेट्स मी क्रिएट अ प्रेडिक्शन सिस्टम, आफ्टर दैट वी विल क्रिएट स्ट्रीमलेट बेस्ड ऐप। तो उसके लिए मुझे चाहिए टेंसरफ्लो के केरास के प्री प्रोसेसिंग से मैं इंपोर्ट करता हूँ इमेज को, एंड फ्रॉम TensorFlow.keras.models इंपोर्ट लोड मॉडल। जो हमने सेव किया है उसी को हमने यहाँ पे लोड करना है। सो अब मैं मॉडल को लोड करता हूँ। सो मॉडल विल बी इक्वल टू लोड मॉडल, और वो जो है हमारे पास इस डायरेक्टरी पे पड़ा है, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन लेट मी पेस्ट। बाय द वे ये जो सेव मॉडल है ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड फ्रॉम हियर। this is the save model, you can just click on this button, it will be downloaded, okay। and अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका काम ये होगा कि इसके पास एक इमेज आएगा और वो उस इमेज को डिस्प्ले करेगा और उसका प्रेडिक्टेड क्लास भी बताएगा। वो जो हमने डाउनलोड पे लगाया था वो भी यहाँ पे डाउनलोड हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। ये हम बाद में ऐप में यूज करेंगे। अब ये फंक्शन मैंने पहले से बनाया है जो कि काफ़ी सिंपल है, मैं जस्ट आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली ये है अपना फंक्शन जिसके पास इमेज का पाथ और हमारा लोडेड मॉडल आ रहा है। अब सबसे पहले हमने इमेज के अंदर जाके लोड किया इमेज को इस पाथ से विद दिस टारगेट साइज, ठीक है। ये रहा अपना इमेज। उसके बाद इमेज को हमने numpy एरे में कन्वर्ट किया और इसको स्केल भी किया, एंड फाइनली इस इमेज के डायमेंशन को भी एक्सपेंड किया बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग में हमने बैचेस यूज किए थे। उसके बाद हमने मॉडल से प्रेडिक्ट किया इस इमेज एरे पे और चेक किया कि अगर मैलिग्नेंट है तो मैलिग्नेंट दे, अदरवाइज बेनाइन दे, और इस कोड से हमने इमेज को डिस्प्ले किया है। सो मैं ये जल्दी से आपको रन करके देता हूँ, और अब मैं ये रन करता हूँ। यहाँ पे हमने अपना ये कॉल किया और उसको मैंने अपना इमेज पास किया। मैंने बेसिकली टेस्ट डाटा से ये इमेज उठाया था जो कि मैलिग्नेंट था, इस इमेज के लिए इसने सही प्रेडिक्ट किया, और ये नॉन कैंसस था तो इसके लिए भी इमेज ने सही प्रेडिक्ट किया है। अच्छा यहाँ पे इसने ये आप देख सकते हो मिस्टेक किया। सो मॉडल मैंने बताया कि यहाँ पे अच्छा नहीं है, सो ये मिस्टेक करेगा, बट यस ओवरऑल ये होता है एक फ्लो प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब हम इसको ट्रांसफर लर्निंग से और भी बेहतरीन मॉडल बना सकते हैं इसको। अब हम इसके लिए एक ऐप बनाएंगे। सो ऐप बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कोई ना कोई IDE। तो मैंने यहाँ पे PyCharm यूज़ किया है, यहाँ पे मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट है, और ये है मेरा main.py फाइल जिसमें हम अपना स्ट्रीमलेट ऐप बनाएंगे। और जो मेरा सेव मॉडल था जो डाउनलोड हो गया उसको भी मैंने यहाँ पे लेकर आया है। सो अब सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ स्ट्रीमलेट को एज st। अब स्ट्रीमलेट एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से आप डाटा साइंस के लिए ऐप बना सकता हूँ। आफ्टर दैट आई नीड numpy, import numpy as np, and I also need okay, from TensorFlow.keras.preprocessing I need to import इमेज, क्योंकि मैंने यहाँ पे इमेज को लोड करना है, और फ्रॉम TensorFlow.keras.models import लोड मॉडल, क्योंकि हमारे पास जो सेम मॉडल है उसको हमने लोड करना है। सो अभी यहाँ पे मैं मॉडल को लोड करता हूँ बाय पासिंग आर स्किन कैंसर CNN.h5, ठीक है। और उसके बाद जो जुपिटर नोटबुक जो कैगल नोटबुक के एंड में मैंने आपको एक फंक्शन दिया था जो हमें एक इमेज डिस्प्ले करके देता था और साथ ही साथ लेबल भी रिटर्न करता था, तो वो फंक्शन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। सो ये है एग्जैक्टली वही फंक्शन, और ये फंक्शन इस बार जस्ट हमें क्लास दे रहा है, और जो इमेज हमने रीड किया है यहाँ पे
वो इमेज भी पलट के हमें दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है अपना UI यानी ऐप वाला कोड। तो UI बनाने के लिए आपको स्ट्रीमलेट का हेल्प लेना होगा। तो उसके लिए आप st.title पहले ऐड करता हूँ, लाइक स्किन कैंसर डिटेक्शन। एंड आप चाहो तो खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे मार्क डाउन आता है स्ट्रीमलेट के अंदर, वो ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि दिस इज स्किन कैंसर डिटेक्शन एप्लीकेशन, upload an image and model will give a result or those, और कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब हमने यूज़र से इमेज को अपलोड करना है। सो इसको मैं कहता हूँ अपलोडेड इमेज, और वो आप कैसे करते हो, स्ट्रीमलेट के अंदर जाके फाइल अपलोडर के अंदर जाके आप कह सकते हो चूज एन इमेज, और उस इमेज के टाइप भी आप बता सकते हो। इमेजेस हमारे पास बेसिकली PNG में आते हैं, JPG में आते हैं, JPEG में आते हैं, एंड वी हैव आल्सो PNG, सो कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। अब एक चेक लगाऊंगा कि इफ अपलोडेड इमेज इज नॉट नन, यानी यूजर ने अगर इमेज अपलोड किया है तो आगे जाके जो अपना प्रेडिक्ट स्किन कैंसर वाला फंक्शन है इसको पास कर दो अपना अपलोडेड इमेज और जो मॉडल हमने लोड किया है वो, और वो पलट के हमें दो चीज़ें दे रहा था, क्लास लेबल और इमेज। ठीक है, यानी बेसिकली हमने इस फंक्शन को कॉल किया जो पलट के हमें इमेज और क्लास लेबल दे रहा है। तो अब हमने ये डिस्प्ले करने हैं। तो अगर आपने इमेज डिस्प्ले करनी है तो आप स्ट्रीमलेट के अंदर जाके इमेज वाले फंक्शन को कॉल करके उसको अपना जो अपलोडेड इमेज है वो पास कर सकते हो। इसके अंदर एक पैरामीटर होता है कैप्शन, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, लाइक अपलोडेड इमेज, एंड यूज कंटेनर विड्थ को आप ट्रू रखो, यानी जितना इमेज का विड्थ होगा उतना ही हमारा यहाँ पे, या बल्कि आप कह सकते हो कि विड्थ विल बी इक्वल टू कोई अपना 500 इनफ होगा। और उसके बाद st.write से आप कुछ ऐड कर सकते हो, लाइक प्रेडिक्शन, और वो प्रेडिक्शन है अपना क्लास लेबल, एंड या दैट्स द कोड। तो अब आपने जाना है अपने टर्मिनल के अंदर और आपने इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट टेंसरफ्लो। ये दो लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क हमने यहाँ पे इंस्टॉल करनी होगी। सो जैसे आप एंटर करते हो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। रन करने से पहले मैं जल्दी से आपको रिवीजन करता हूँ। ये ऐप वाला कोड, ये है टाइटल, ये जस्ट मार्क डाउन है। यहाँ पे यूज़र जो भी इमेज अपलोड करेगा, अगर वो अपलोड हुआ है तो वो इमेज हम इस फंक्शन को पास कर रहे हैं और ये फंक्शन हमें उसका प्रेडिक्टेड लेबल दे रहा है। एंड देन अपलोडेड इमेज यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं विद विड्थ ऑफ 500 और जो लेबल है क्लास लेबल वो भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब इस इफ से बाहर आके मैंने अपना एक और मार्कडाउन बनाया है जस्ट ऐप को खूबसूरत बनाने के लिए। तो अभी के लिए मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल में और मैं इस ऐप को रन करता हूँ। तो उसके लिए मुझे लिखना होगा स्ट्रीमलेट रन main.py। main.py मेरे फाइल का नाम है। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ मेरा ये ऐप अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो दिस इज़ आवर ऐप। यहाँ से आप इमेज अपलोड कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो। और इट्स रनिंग। ये रहा अपना इमेज विद क्लास
और बाकी जो मार्कडाउन मैंने ऐड किया था। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो मॉडल है इसका रिजल्ट आपको हर इमेज के लिए सही नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक्स भी हो सकते हैं। बट अगर आप ट्रांसफर लर्निंग यूज़ करते हो तो इससे आपके मॉडल की परफॉर्मेंस एंड एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ सकती है। जो हम आने वाले वीडियो में ट्रांसफर लर्निंग पे बड़ी डिटेल से काम करेंगे, बट उससे पहले हम CNN के कुछ और प्रोजेक्ट करेंगे विद डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, ठीक है, ताकि हम CNN के तमाम यूसेज यहाँ पे देख सकें।